چھپے رستم کے بارے میں کلام سیکھ رہے ہیں. خدا کبھی کبھی یا اکثر اوقات ایسا کرتا ہے کہ اپنے خفیہ کاموں کو، اپنے چھپے ہوئے کاموں کو، اپنے پلانز کو ایسے لوگوں پر عیاں کرتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر ظاہر کرتا ہے جن کو لوگ نہیں جانتے. یعنی جو معمولی ہوتے ہیں، غیر معروف ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، کسی کھاتے میں نہیں ہوتے، نہ ان کا نصب نامہ جو ہوتا ہے اتنا فیمس ہوتا ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ بالکل سادہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن خدا انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر کے زیرو سے ہیرو بناتا ہے. پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 27 آیت میں یوں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے. ہالےلویا، ہالےلویا. جیسے کہ اس آیت میں بھی لکھا ہے کہ خدا کمزوروں کو، بے وجودوں کو، بیوقوفوں کو، جو دوسروں کی نظر میں بیوقوف ہیں، کمزور ہیں، نکمے ہیں، لیکن خدا ان کو زوراور بنا کر استعمال کرتا ہے. ہالےلویا، ہالےلویا. زیرو سے ہیرو کے لیے ایک آیت پڑھیں گی، قصاب کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 31 آیت. یہاں یوں لکھا ہے کہ اس کے بعد اناق کا بیٹا شمجر کھڑا ہوا اور اس نے فلسطینیوں میں سے 600 مرد بیل کے پینے سے مارے اور اس نے اسرائیل کو رہائی دلائی. ہالےلویا. یہ جو شمجر جس کے بارے میں، جس کریکٹر یا جس کردار کے میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، یہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے بیل کے پینے سے، پینے کہتے ہیں ایک لکڑی جو بیل کو ہانکنے کے لیے چرواہے کسان استعمال کرتے ہیں، اس نے ایک ہی لکڑی سے 600 سورما کو، 600 بندوں کو مار دیا. حالات کیا تھے؟ وجہ کیا تھی کہ اس بندے نے، یعنی اس کسان نے جو کہ بیلوں کو ہانک رہا تھا، بیلوں کو لے کر جا رہا تھا، اپنے لکڑی سے، اپنے عصا سے 600 جو فلسطینی مرد تھے، جنگجو جو جنگی تھے، سورما تھے، جاتی جولیت کی طرح، ان کو ایک ہی دفعہ دھڑام سے نیچے مارا، یعنی گرا دیا، مار دیا. قصاب کی کتاب آلموسٹ بھری پڑی ہے کہ کبھی رہائی، کبھی شکست، کبھی محبت، کبھی غلامی، یعنی کبھی قید، کبھی اسیری، یعنی کبھی خدا چھڑاتا تھا پھر یہ وہیں چلے جاتے تھے، کبھی خدا انہیں بحال کرتا تھا پھر یہ بگڑ جاتے تھے. اس غیور خدا کو بھول گئے، خدا جو وعدوں کا سچا اس کو بھول گئے اور اپنے ارد گرد کی قوموں میں مست ہو گئے، اپنے ارد گرد کی قوموں میں غلط ملت ہو گئے، اپنے ارد گرد کی قوموں میں شامل ہو گئے، ان کی رسومات کو اپنے اندر لے لیا، ان کی رسم و رواج کو اپنا لیا. ایسا ہوتا ہے جو ہی آپ خدا کے احکام کو رد کرتے ہیں، کوئی بھی حکم جو خدا کا آپ کو دیا جاتا اس کو رد کرتے ہیں، تو یوں سمجھے آپ ابلیس کو موقع دیتے ہیں، آپ ابلیس کو جگہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے اندر آ جائے، آپ کے خاندان میں شامل ہو جائے. اور ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے بھی جب غیر قوموں کے ساتھ رشتے ناطے جوڑ دیے، غیر قوموں کے ساتھ مل گئے، تو ان کی اپنی جو مذہبی رسومات تھی، جو ان کا اپنا کلچر تھا، جو ان کا رہن سہن کا، سب بھول گئے، سب بھول گئے. 10 احکام کو بھول گئے، غیور خداوند کو بھول گئے، زندہ خداوند کو بھول گئے، اور صرف ان میں شامل ہو گئے، اس محبت کو بھول گئے جو خدا نے ان سے کی تھی. آپ جانتے ہیں کہ خدا کس طریقے سے ان کا رونا دھونا سن کر ان کو مصر کی غلامی سے لے کر آیا، مصر کی غلامی سے چھڑایا، دن کو بادل رات کو شعلے بن ان کے آگے کے چلتا رہا، ہر طریقے سے ان کے ساتھ رہا، من برساتا رہا، چٹانوں سے بلاتا رہا، کبھی کسی چیز کی کمی نہ خدا نے ہونے دی. پھر بھی یہ خدا کے احکام کو، خدا کی محبت کو بھول کر غیر قوموں میں شامل ہو گئے. یاد رکھیں کہ جو ہی آپ غیر قوموں کو اپنا بنا لیں گے، دوست بنا لیں گے، ان کے ساتھ دوستیاں کریں گے، تو نقصان اٹھائیں گے، جیسا بنی اسرائیل نے نقصان اٹھایا. اور جب یہ ان کے ساتھ مل گئے اور جب انہوں نے ان کے اوپر کنٹرول کر لیا، جب ان کا اپنا وجود باقی نہ رہا، تو رونے لگے. سن رہے کس کو سمجھ آ رہی؟ یعنی جب ان میں شامل، تو ظاہر بات ہے انہوں نے ان پہ ظلم ستم ڈھایا،
उन्होंने इनके ऊपर सख्तियां करना शुरू की। जो कुछ होते थे वो उठा लेते थे, इनके भेड़ मुआशी सब कुछ ले लेते थे, क्योंकि वो इन पे हुक्मरानी करने लगे, फिर आहुजारी करने लगे, फिर रोने धोने लगे। यानी बनी इस्राइल को कसाद की किताब में आप देखेंगे कि साइकिल के पहिए की तरह ये चलते जाएंगे, कभी तौबा करेंगे, कभी खुदा की मोहब्बत को महसूस करेंगे, कभी खुदा को रद्द करेंगे, कभी खुदा को छोड़ देंगे। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदाम रहीम, खुदाम शफकत करता है, खुदाम रहीम और करीम है, खुदाम प्यार करता है। जो ही ये रोते थे, जो ही चलाते थे, तो खुदा फिर इनकी दुआओं को सुन लेता था। यानी फिर भी जिसे कहते हैं ना, सर्द कभी गर्म कभी नीम गर्म, यानी इनकी हालत ऐसी थी। जब इनकी हालत ऐसी हो गई तो फिलिस्तियों ने आके इन पर हमला कर दिया। इनकी सारी मजहबी रसूमात, इनके सारे खुदा के अहकाम, यानी जो जो खुदा ने इनसे कहा था, इनका सब कुछ छूट गया। उन्होंने इन्हें हर तरीके से तबाह कर दिया, सकाफती तरीके से तबाह कर दिया, सियासी तरीके से तबाह कर दिया। ना इनके पास कोई असला था, ना ये जंगजू थे, ये तो किसान और चरवाहे थे। बनी इस्राइल क्या थे? किसान और चरवाहे। ये असला रखने वाले लोग नहीं थे। असला तो इनका खुदा था, तलवार तो इनकी खुदा था, ढाल तो इनकी खुदा था। जब खुदा ही दूर हो गया तो फिर ये तो नहरते रह गए ना, ये तो बगैर हथियार के रह गए। ये जंग कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि जब भी जंग इनके साथ किसी भी कौम ने लड़ी तो वो जंग जो है वो गयूर खुदाम ने लड़ी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदाम जो साहिबे जंग है हमेशा इनकी जगह लड़ता। और खुदा ने जब इनकी फिर दोबारा आहुजारी सुनी, फिर खुदा ने इनके बंधनों को तोड़ा, फिर खुदा ने इनके साथ इनका रोना धोना सुना, तो फिर खुदा ने, जिसका कैरेक्टर आपके सामने मैं सुना रही हूँ, तब खुदा ने इनकी आहुजारी पर कान धरा और शमजर को इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। सब कुछ सुनने के लिए तैयार है? हाँ जी, सुनने के लिए तैयार है, सुनने के लिए तैयार है। तो जब खुदा ने शमजर को इस्तेमाल किया, तो मैंने पहले बता चुकी थी, ये तो एक आम बंदा था, एक आम देहाती किसान था। इसके नाम का मतलब है तलवार। यानी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई जिसे कहना चाहिए हीरो नहीं है, बनी इस्राइल का हीरो नहीं है, कोई काहिन का बेटा नहीं है, कोई नबी नहीं है। सिर्फ एक ही मर्तबा पूरी बाइबल में इसका नाम आया है, और उसी में खुदा ने इसको इतनी बरकत दी कि इसने बनी इस्राइल को रहाई दिलाई और 600 जंगजू थे वो उसने मार दिए। जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। आपके ख्याल में ये आसान बात है कि उसने, जिसके नाम का मतलब, शमजर के नाम का मतलब तलवार है, उसने अपनी लाठी से 600 जंगजू फिलिस्तियों के मार दिए? ये हो सकता है? बोले जी, एक लाठी से मार सकते हैं 600 जंगजू? नहीं ना मार सकते, नहीं मार सकते। लेकिन ये कौन मार रहा था? कौन मार रहा था? ये जंग किसकी थी? खुदावन की। ये जो लाठी में ताकत आई है, कुव्वत आई है, ये इलाही कुव्वत थी, ये खुदा बाप की कुव्वत थी। क्योंकि खुदा ने अपनी कौम को निकालना था और शमजर को इस्तेमाल करना था, और शमजर की लाठी में इलाही ताकत डाली और वो धड़ाधड़ मारता चला गया, जंगजुओं को मारता चला गया। और ये खुदा था, ये शमजर की कोई ताकत नहीं थी, ये शमजर की कोई लियाकत नहीं, या वो छड़ी में कोई जादू नहीं था, या छड़ी दो-धारी तलवार की मानद नहीं थी। बेशक उसके नाम का मतलब तलवार था, लेकिन खुदा ने भी उसके नाम के मुताबिक उसको तलवार बनाकर, अपनी तलवार बनाकर अपने जलाल के लिए, अपने लोगों को रहाई देने के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक हवाला देखेंगे, याकूब की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों सुनो, क्या खुदा ने जहां के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और इस बादशाह के वारिस होने के लिए बरगज़ीदा नहीं किया, जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया? यह सवाल हो रहा है कि क्या खुदा ने आप लोगों को बरगज़ीदा नहीं किया? क्या खुदा ने गरीबों को नहीं चुना?
क्या खुदा ने नकम्मों को नहीं चुना, जिसको कोई जानता नहीं था, लेकिन खुदावंद अपने मकासद के लिए, अपने जलाल के लिए, अपने इलाही कामों के लिए, अपनी कौमों को छुड़ाने के लिए, अपने नबियों तक पैगाम पहुंचाने के लिए जिसको जी चाहे इस्तेमाल कर सकता है। खुदा ने ऐसे लोगों को, बहुत से लोगों को इस्तेमाल किया, जिनमें सरफहरिस्त आपको याद होगा कि मूसा को खुदा ने इस्तेमाल किया। ये पुरुष की किताब में ये सारे वाकयात आपको पता चल जाएंगे। खुदा ने मूसा से कहा कि तेरे हाथ में क्या है, और उसने कहा एक लाठी है। याद आया? तो उस लाठी को खुदा ने कहा चट्टान पर मार। जब चट्टान पर मारा गया तो वहां से पानी निकल आया। तो क्या मूसा जो भेड़ बकरियां चरा रहा था मदियान में, क्या उसकी लाठी में कोई खास पावर थी? नहीं थी। ये पावर खुदावंद की कुदरत से मूसा की लाठी में आई है। खुदा ने इस लाठी को अपनी कुदरत से भरकर मूसा के लिए इस्तेमाल किया। जो ही उसे कोई कुएं नहीं खोदना पड़ा, कोई गहराई तक मजदूर लगा के नहीं खोदने पड़े, सिर्फ ऑर्डर माना, फरमाबरदारी की, और खुदा के कहने पे उस लाठी को चट्टान पर मारा और चट्टान में से पानी निकल आया और लोगों ने पिया और सेर। और बिल्कुल इसी तरीके से जब वो बनी इसराइल को लेकर जा रहा था तो खुदा ने कहा कि अपने हाथ को बहरे कुलजम की तरफ बढ़ा दे। जो ही उसने अपने हाथ को बहरे कुलजम की तरफ बढ़ाया, कुलजम के दो टुकड़े हो गए, पानी एक तरफ हो गया और दूसरी तरफ हो गया, बीच में रास्ता बन गया। खुदा अपने लोगों को सलामती के साथ रहाई देकर, फराउन के रथों से बचाकर बहरे कुलजम में से खुशकी पर ले गया। हालेलुया, हालेलुया। आपको जल्दी से दाऊद के बारे में बताऊं कि दाऊद एक छोटा सा बच्चा, क्या वो जंगी मर्द था, जंग लड़ने वाला था? वो तो भेड़ बकरियां पालता था, वो तो चरवाहा था। एक मामूली छोटा सा बच्चा जो सिर्फ खुदा की वर्शिप करता था, जो सिर्फ खुदा की मोहब्बत से लबरेज था। वो गयूर था और गयूर खुदा से मोहब्बत करता था और वो उसकी हमद करता था, गीत गाता था, पाक दिल था, खुदा के साथ रास्ते से चलता था। जब वो उसने देखा कि बनी इसराइल को जाति जूलियत है, वो उनकी फसीह कर रहा है, उनको बेइज्जत कर रहा है, उनकी तौहीन कर रहा है, तो उसने कहा कि ये उसके दिल में है कि जिंदा खुदा के लोगों की जिसे कहने की बेइज्जती कर रहा है। उसने एक फला कर लिया और एक ही पत्थर से जाति जूलियत का कलाकुमा कर दिया, उसको मार कर नीचे धर दिया, वो नीचे गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। ये पत्थर में ताकत कहां से आई? पत्थर में ताकत कहां से आई? खुदावंद की तरफ से। आप जब खुदावंद से मांगते हैं, ईमान से मांगते हैं, तो खुदावंद चाहे जैसे मर्जी आपकी कुमत करे वो करता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक हवाला देखें। पहला शमूएल 17वां बाब और 47 आयत में यूं लिखा है, और सारी जमात जान ले के खुदा तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जान तो खुदा की है और वो तुमको हमारे हाथ में कर देगा। आमीन, आमीन। यानी हमारा खुदा साहिब जान गया। हालेलुया। आप किस खुदा के परस्तार हैं जो साहिब जान गया है, जिसने हमारी उंगलियों पर लड़ना, हमारे हाथों को जंग करना सिखाया है। वो जो हमें कुव्वत देता है, वो जो हमें ताजगी देता है, वो जो हमारे हौसलों को बुलंद करता है, हमेशा हमारे साथ रहता है। किस को याइल का वाकया याद है? याइल एक आम सी औरत, याइल ये भी कसात की किताब में है, एक आम सी औरत, और उसने एक बहुत बड़े सूरमा को, एक जबरदस्त सिपाहसालार को खत्म कर दिया, मार दिया। कैसे? टेंट में रहती थी और उसने वहीं से एक मेघ और मेघचू पकड़ लिया। वहीं से एक मेघ क्या था? बड़ा सा कील, और मेघचू जिसे कील को ठोका, जिसे टेंट जो है वो खड़े होते हैं। जब सिसरा भाग कर आया, सिसरा बनी इसराइलियों से भाग रहा था, तो उसे पनाह चाहिए थी, तो आ गया याएल के टेंट में। तो याएल के दिल में पहले से खुदा ने तैयारी दे दी थी कि हाँ या आजा भाई आजा, मैं तैयार हूं। उसने उसको दूध भी पिलाया और वो मस्त होकर चल गया। उसे ये नहीं पता था कि आया किसके पास है। खुदा ने याएल को इस्तेमाल किया। याएल ने फौरन
अपनी एक मेख उठाई और मेख उठाया और उसकी खोपड़ी में दे मारा और उसको मार डाला और फिलिस्तीनियों से रहाई मिल गई और बनी इस्राएल जो थे वो रहा गए। कैसे? सिर्फ एक मेख से, सिर्फ एक मेख से, सिर्फ एक कील से। मैं बार बार बता रही हूँ, ये मेख या कील का कमाल नहीं, कमाल उस जलाली खुदा का है। हालेलुया। जब जब आप खुदा को ईमान के साथ पुकारेंगे, जब जब आप खुदा को पूरे दिल से पुकारेंगे, जब जब खुदा के अहकाम की फरमाबरदारी करेंगे, तो खुदा हमेशा आपकी रहनुमाई करेगा। हर आए अंधेरी आवे, जो मर्जी आए वो आपके साथ है। हालेलुया। आए जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। समसून के बारे में बयान करूंगी कि समसून के लिए खुदा का एक खास इलाही मकसद था, क्योंकि इस्राएलियों पर फिलिस्तियों ने कंट्रोल किया हुआ था। वो इस्राएली जो थे फिलिस्तियों के कब्जे में थे और खुदा ने उसको बड़े खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया। बात का तो ये लोग समझते हैं चलो जी दलाला दे इश्क दे विच ने सारा कुछ खो दिया। हरगिज़ नहीं। खुदा का एक मकसद था कि किस यानी जब जब वो समसून को मारने आते थे तो समसून क्या करता था? फिलिस्तियों को मार भगाता था, फिलिस्तियों को जान से खत्म कर देता था। और एक वक्त ऐसा है कि फिलिस्ती जो थे वो हमला करने के लिए आए, तो समसून अकेला था, उसे पास पड़ा हुआ गधे का एक जबड़ा मिल गया। उसने गधे के जबड़े से 6000 लोगों को मार भगाया। हालेलुया। 6000 लोगों को मार डाला। कैसे? जबड़े में क्या ताकत थी? जबड़े में कोई ताकत नहीं, गधे का जबड़ा है। आम आपने देखा होगा कुत्ते के जबड़े पड़े होते हैं, हमारे जानवरों के जबड़े, इनमें कोई ताकत नहीं। ताकत साहिब जंग जो पीछे है, जो पीछे काम करता है, जो हमारे साथ रहता है, जो हमारे अंदर है, जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, वही हमारी जंग लड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि वो साहिब जंग है? कितने लोग जानते हैं कि वो साहिब जंग है? हमें तलवार की, नेज़ों की या जंगी आलात की या जंगी हथियारों की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है साहिब जंग की, हमें जरूरत है खुदावंद की, हमें जरूरत है जो हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमें जरूरत है उस खुदावंद की जो यहोवा यरी है, हमें जरूरत है उस खुदावंद की जो मुहैया करता है, हमें जरूरत है उस खुदावंद की जो यहोवा शालूम है, जो शाफी है। जब हम उसके साथ लिपट जाते हैं, जो हमें चारों तरफ से घेर लेता, तो हमें परेशानी नहीं आती, क्योंकि हमारी जंगें, मैं बार बार बयान कर रही हूँ, मजबूत बन जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि हमारी जंगें खुदा लड़ता है। तो सवाल करना चाहती हूँ, टेस्ट नहीं है। तो जब रसूलों ने कलाम सुनाना शुरू किया, मौजे हुए, तो कैसे होते थे? कोई बताएगा कैसे होते थे? जब रसूलों ने कलाम सुनाना शुरू किया तो बड़े बड़े मौजे होते थे। कलाम में लिखा है कि लोग अपने बीमारों को, लाचारों को ले आते थे कि पतरस का साया ही पड़ जाए तो वो ठीक हो जाएंगे। कैसे? वो इस तरीके से कि रसूल भी यीशु मसीह का नाम लेकर मौजे करते थे। वो अपने नाम में, उनके कोई कुदरत नहीं थी, अपने नाम में कोई ताकत नहीं थी। जितनी मर्जी पतरस रसूल के नाम से दुआ कर ले, जितनी मर्जी मुकद्दसा मरियम के नाम से दुआ कर ले, कोई जवाब नहीं आएगा जब तक आप ना कहेंगे खुदाम यीशु मसीह के नाम से। और यही वजह है कि जब रसूलों ने खुदाम यीशु मसीह के नाम से दुआएं करना शुरू की, तो आप देखते हैं कि किस तरीके से मौत हुए, किस तरीके से लोगों ने निजात पाई, किस तरीके से लोगों ने बुत परस्ती छोड़ी, किस तरीके से लोगों ने मंदिरों में से निकलकर खुदा के कलाम को कबूल कर लिया। जब जब यीशु मसीह के नाम का प्रचार होता था तो मौत से होते थे। रसूलों के काम करने के वसीले से रसूल जो थे यीशु मसीह का नाम लेकर जब दुआ करते थे कि सोना चांदी मेरे पास है नहीं, जो कुछ है वो तुझे दिए देता, उठ यीशु मसीह के नाम से चल फिर, तो लंगड़े शिफा पा जाते थे, अंधे देखने लग पड़ते थे, बहरे सुनने लगते थे। कैसे? यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में कुदरत है। यीशु मसीह के नाम से मौत से जाहिर होते हैं। इंसान कुछ नहीं कर सकता। आज भी जब खादम, पास्टर, एवेंजलिस्ट, डीकन, जब भी आप यीशु मसीह का नाम लेकर दुआ करते हैं तो आपके घरों में निजात का काम होता है, आपके घरों में बहाली का काम होता है, आपके घरों में शिफा का काम होता है। कैसे? यीशु मसीह का नाम लेकर।
हालेलुया, हालेलुया। जैसे खुदा ने शमजर को इस्तेमाल किया सिर्फ एक ही लाठी से, ऐसे खुदा आज भी हम सबको इस्तेमाल करता। आए मेरे साथ एक हवाला देखें, 2 कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 4 आयत। इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक दिलों को ढा देने के काबिल है। हालेलुया, हालेलुया। आए जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। हमें अगर किलों को ढाना है, किले क्या है? किले क्या है हमारे? यानी अब्लीस जो हमला करता है, जो अब्लीस हमें तंग करता है, या अब्लीस हमारे घरों में घुस के हमें परेशान करने की कोशिश करता है, हमें जिस्मानी लड़ाई से नहीं, कलाम से लड़नी है, दुआ से उसको भगाना है। बीमारी आ जाती, दुआ से भगानी है, कलाम से, वर्शिप से। हालेलुया, हालेलुया। हम शमजर का जो है कैरेक्टर या किरदार सीख रहे हैं। यानी शमजर ने फर्माबरदारी की, ताबियादारी की, जो कुछ उसके पास था उसने वो इस्तेमाल किया। उसने ये नहीं कहा कि ठहरो पहले मैं कोई 400-500 ढाले, तलवारें और जंगी आलात बनवा लूं फिर लड़ूंगा। उसने ताबियादारी की, उसने फर्माबरदारी की। जैसे कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने जब मौजा किया तो एक बच्चे के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। जो कुछ उसके पास था उसने वो पेश किया। समझ रहे हैं? यानी हमारे लिए हम इस किताब से ये लेसन सीख रहे हैं कि जो कुछ हमारे पास है हमें वो इस्तेमाल करना है। ये नहीं कहना हमारी जिंदगी में अगर या इफ की गुंजाइश नहीं है। जो खुदा के रास्तबाज हैं, जो खुदा से प्यार करते हैं, उनकी जिंदगी में इफ या अगर या ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अगर मेरी लॉटरी निकलेगी तो मैं ये करूंगा, अगर मेरी लॉटरी निकलेगी तो मैं ये करूंगा, अगर मेरा प्राइज बॉन्ड निकलेगा तो मैं ये करूंगी, अगर खुदा मुझे एक्स्ट्रा पैसे देगा तो मैं ये करूंगी, या अगर मेरे पास ट्रेनिंग होती तो मैं ये करती। शमजर के पास ट्रेनिंग थी कोई? बोले जी, कुछ ही बोलो, की हो गया? शमजर के पास कोई ट्रेनिंग थी? उसने लॉटरी का इंतजार किया? उसने प्राइस बॉन्ड का इंतजार किया? उसने कहा जी एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो फिर होगा, ऐ मेरे बच्चे मेरे मां बेटी बनणगे तो फिर कुछ करांगा? ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग मफरूजे पर, अगर पर, इफ पर भरोसा रखते हैं उनका खुदा पे कोई भरोसा नहीं। जो प्राइस बॉन्ड पर भरोसा रखते हैं उनका खुदा पे कोई भरोसा नहीं। हमेशा खुदा पे भरोसा रखें, जैसे शमजर ने, जैसे और हीरोज ने भरोसा रखा और खुदा के नाम को जलाल दिया और खुदा ने उनको जीरो से हीरो बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए बजाएं। डिग्रियां बाइबल ट्रेनिंग वगैरह होना चाहिए, लेकिन जरूरी भी नहीं है। अगर नहीं भी है तो खुदाम से कहें कि खुदाम मैं खाली वक्त हूं, आप मुझे इस्तेमाल कर। तो खुदा ने कहना पहले बाइबल कॉलेज कर दिया, पहले प्राइज बोर्ड में करवा। ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ आपके पास है उसको इस्तेमाल करें। है क्या आपके पास? खुदाम आपको हर तरीके से जिस्मानी रूहानी तरीके की बरकत दे, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ वो क्या है? हम तो स्ताइश। आपके पास क्या है? हम तो स्ताइश। बोले ऊंची। आप क्या कर सकते हैं? हम तो स्ताइश कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? बाइबल पढ़ सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? गवाही दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? रूहें बचा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? प्यासी जानों के पास खुदा का कलाम लेकर जाते हैं। ये आपके पास है, लेकिन ये ना कहें अच्छा मेरे पास तो ये नहीं है। है आपके पास, इसको ही गाज बाज के सुनाए। खुदावंद आपको बरकत देगा और खुदावंद आपको आपके घरानों को और ज्यादा आगे गहरे में लेकर जाएगा। लेकिन रुपए पैसे के ताल्लुक से जो कुछ खुदावंद के लिए आपने देना वो जरूर दें। अपनी धैर्य की, अपने हथियार नजराने, अपनी शुक्रगुजार, यानी जो कुछ आपके पास है वो दे। इसलिए कहना चाहती हूँ कि अपने आप को परखें। आपके पास थोड़ा है, थोड़े से भी खुदा के नाम को जला दे। अगर आप थोड़े को भी दबा कर रखेंगे तो उसने नहीं ज्यादा होगा। अगर आप सिंगर नहीं है, गॉस्पेल सिंगर नहीं है, जी हम सामने गाना आता,
जैसे भी गाना आता है उसकी वर्शिप करें। सुन रहे हैं? जैसे भी गाना आता सुबह सवेरे उठ के ज़बूर गाएं, गीत गाएं, कलाम पढ़े, उसके हुक्मों को माने, एक दूसरे के साथ कलाम शेयर करें, जो कुछ आपके पास है उसे इस्तेमाल करें। तो खुदाम जो साहिब जंग है, खुदाम जो फतहमंद खुदाम है, जो खुदाम हमें फतह बख्शता है, वो आपको फतह से बढ़कर गलबा बख्शेगा। हालेलुया।